আটাইকে নমস্কাৰ আৰু সকলোকে আদৰণি জনাইছো to my channel 10 minutes literature with myself your friend Rishikesh. So today we're going to discuss about an important topic of literary criticism, and this topic includes the most heated debate between two great Greek philosophers, Plato and Aristotle. Now we all know that these two names do not need any sort of introduction. Plato is the one who tried to trace philosophy behind every creation, and Aristotle is the one who started the discourse of criticism of any creation. So one thing you would be very much interested to know that Aristotle used to be a student of Plato, but both of these philosophers' ideas used to intersect each other. And one of these kind of thing took place when both of them discussed or presented their ideas about poetry. So let's discuss what they have, tried to impart through their knowledge about poetry. So before starting the discussion, I want to give you some important facts about both Plato and Aristotle. So Plato was the first thinker who coined the term mimesis. That means the art of imitation. कोई भी रियलिटी का चीज को इमिटेट करना या फिर ट्रुथ को इमिटेट या फिर कॉपी करने को मिमेसिस कहा जाता था. और जब बात आर्ट की आती है तो प्लेटो डिवाइडेड आर्ट इनटू टू टाइप्स. द फर्स्ट वन वाज आर्ट ऑफ प्लेजर. दैट मींस आर्ट सच एज म्यूजिक, पेंटिंग, poetry or any form of literature which can provide pleasure to readers and audience can be considered as art of pleasure. और दूसरा टाइप का आर्ट था यूजफुल आर्ट. जैसे कि उस टाइम में यूजफुल आर्ट के अंदर आपका आता था मेडिसिन, एग्रीकल्चर और कुकिंग, जिससे लोगों का कुछ फायदा हो. तो इस हिसाब से प्लेटो ने दोनों आर्ट को डिवाइड किया था. तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो द आर्ट ऑफ प्लेजर is basically the art of imitation, that is mimesis. तो कभी भी art of pleasure reality नहीं होता है या फिर truth नहीं होता है. इसीलिए पोइट्री को एक्सेप्ट करने से प्लेटो थोड़ा सा कतराते थे, या फिर प्लेटो had some objection while accepting poetry as a form of art. So इसीलिए प्लेटो ने एक बुक लिखा था जिस बुक में उन्होंने पोइट्री को heavily क्रिटिसाइज किया था. And this book is known as Republic. But तो आप जैसा रिपब्लिक सोच रहे हो वैसा रिपब्लिक नहीं है. ये रिपब्लिक काफी अरसों पहले ही पब्लिश हुआ था. सो इस बुक में प्लेटो ने ट्राई किया था कि वो पोएट्री को क्रिटिसाइज कर सके या फिर पोएट्री के जो ड्रॉबैक्स थे उसको निकाल सके. So Aristotle was not quite happy with this kind of thing. So he thought that poetry has so many, benefits or so many utilities that people can learn so many things from poetry. That is why Aristotle chose to defend poetry. और उन्होंने डिफेंड किया था पोएट्री अपने एक बुक में जिसका नाम था पोएटिक्स. तो उस बुक में एरिस्टोटल ने पहले प्लेटो का जो भी कमेंट्स था या फिर क्रिटिसिज्म था पोएट्री को लेके उसको पहले मेंशन किया, और हर पॉइंट वाइज अपना डिफेंसिव पॉइंट उन्होंने प्रेजेंट किया प्लेटो के सामने. सो अभी हम वो तीनों चीज या फिर वो तीनों क्रिटिसिज्म जो प्लेटो ने किया था पोएट्री के ऊपर उसको डिस्कस करेंगे, उसका रीजन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एरिस्टोटल ने उसको कैसे डिफेंड किया था हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. Poetry, first of all, poetry is not real, and moreover, it is twice removed from reality. अभी twice removed from reality क्या है मैं आपको ये समझाता हूँ. Suppose ये एक मार्कर है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक मार्कर है. So before making this marker, the maker of this marker had an imagination or a thought in his mind कि कैसे बनाया जाए, कैसे प्लास्टिक को मोल्ड करके मार्कर बनाया जाए, कौन सा चीज इसके अंदर डाला जाए और कैसे इसको असेंबल किया जाए. So that would be the first reality that the maker had in his mind. उसके बाद with that imagination he made this marker, and this marker would be your second reality. That means it has been moved once from reality. अभी suppose ये मार्कर अगर मैंने ऐसे लेके एक ऐसे अगर पिक्चर खींच लिया या फिर किसी ने मेरा ऐसे एक पेंटिंग बना दिया ये मार्कर को लेके, तो उस पेंटिंग में जो वो मार्कर होगा वो आपका
थर्ड रियलिटी होगा या फिर ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी होगा। तो इसीलिए प्लेटो ने बोला था कि जब एक रियलिटी को एक पोएट डेपिक्ट करता है, देन ही यूज्ड टू ऐड हिज ओन स्पाइसेस, ओन पर्सपेक्टिव और परसेप्शन about that reality, and he used to form that poetry with his own imagination. That is why Plato बोलते थे कि एक पोएट्री हम कभी भी रियल नहीं हो सकता है, it has already moved twice from reality. So in a way poetry used to create imagination or illusion in the mind of readers, जिसके वजह से readers reality को देख नहीं पाते हैं। लेकिन इसको डिफेंड करके एरिस्टोटल ने एक चीज बोला कि पोएट कभी भी मतलब क्लेम नहीं करता है कि वो रियलिटी दिखा रहा है। पोएट हमेशा ट्राई करता है, पोएट ट्राइज टू क्रिएट अ सिनेरियो दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम अ रियल इंसिडेंट फ्रॉम हिस्ट्री। अभी इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने आपको जोधाबाई और अकबर के बारे में अगर आपको मैंने पढ़ने को बोला, देन आई थिंक यू विल फील बोर्ड। आप बोर हो जाओगे क्योंकि इतना बड़ा हिस्ट्री आपको बुक में पढ़ने के लिए आप बोर फील करोगे। बट अगर मैंने आपको वही सेम जोधाबाई और अकबर के बारे में एक मूवी दिखा दिया, देन यू वुड बी मोर इंटरेस्टेड। लेकिन वो मूवी रियलिटी नहीं है, आपको पता है, लेकिन वो मूवी एक ऐसे परसेप्शन से दिखाया गया था जिससे ऑडियंस भी अपने आप को रिलेट कर सके। इसीलिए एरिस्टोटल ने बोला था कि पोएट्री को आप रियलिटी के हिसाब से मत देखिए, पोएट्री को आप एज अ पीस ऑफ लिटरेचर देखिए जिससे आप अपने लाइफ के बारे में कुछ परसेप्शन निकाल सके। दैट इज व्हाई एरिस्टोटल ट्राइड टू डिफेंड दिस एलिगेशन दैट वाज मेड बाय प्लेटो। So the second allegation that Plato made on poetry is that poetry is bad because it does not inspire virtue or does not preach any morality. So according to Plato, पोएट्री कभी भी रीडर्स को अच्छा काम करने के लिए या फिर लाइफ में अच्छा या फिर सही पाथ चूज करने के लिए इंस्पायर नहीं करता है। But this allegation was easily defended by Aristotle. Aristotle gave us two examples or two perspectives. One perspective from readers and one perspective from literary creators. So readers के perspective के हिसाब से Aristotle ने बोला, अरे पोएट्री तो आराम से तुम्हारा रीडर्स को इंस्पायर करता है। बिकॉज मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, अगर आपके आंखों के सामने मैंने एक पोएट्री रख दिया विच इज टू डिस्क्राइब अबाउट द सैक्रिफाइस ऑफ इंडियन आर्मी इन द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, देन आपको ऑब्वियसली आपके दिल में देश प्रेम का भावना जाग जाएगा। या फिर ऐसा एक आपको पोएम दे दूं जहां पर पोएट ने अपनी जो बिलवेड थी उसके डेथ के बाद उसको डिस्क्राइब करके एक पोएम लिखा है, that how much he used to miss her, then obviously you will feel emotional for your near and dear ones. So that's the power of poetry, which is to inspire each and every human being. And the second perspective was from the side of literary creators. So according to Aristotle, एक literary creator poetry से दो चीज का इंस्पिरेशन ले सकते हैं। One is satire and one is catharsis. So satire is nothing but mocking or insulting someone in a polite way, so that that person can also get benefited from that kind of insult. और catharsis है आपका the feeling of pity and fear. So according to Aristotle, some literary creators would get inspired from catharsis and they will create tragedy. And some of the literary creators, they will get inspired from satire and they will try to create comedy out of it. So in a way it is a win-win situation for both the writers, readers as well as the literary creators. So इसके बाद प्लेटो ने अपना थर्ड एलिगेशन दिया। So according to Plato, poetry should be used only for educational standpoint and not for philosophy. सो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अगर पोएट्री आपको सिखाना ही है, पोएट्री स्प्रेड करना ही है, तो आप एजुकेशन पर्पस पे करो ना। मतलब स्टूडेंट्स को सिखाओ, स्टूडेंट्स को एज अ पार्ट ऑफ लिटरेरी क्रिएशन ये सिखाओ, रादर देन गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम इट। बट इस चीज को एरिस्टोटल ने डिफेंड करके बोला था कि अगर पोएट्री सिर्फ एजुकेशनल पर्पस में सिखाया गया, देन the students or the readers, they will only try to extract the external meaning of the poetry. ऊपर से क्या कहा गया है उसको ही सिर्फ उसको जानने का कोशिश करेंगे। बिकॉज इन अ वे एग्जाम में सिर्फ 10 मार्क के लिए लिखना है, तो इतना कौन मेहनत करे, तो समरी देख के लिख के आओ ना,
वही तो मतलब माइंडसेट रहेगा। सो इसीलिए एरिस्टोटल ने बोला था कि इसको एज अ पार्ट ऑफ फिलोसॉफी भी स्प्रेड करो, बिकॉज उससे वो उसका इनर मीनिंग जानने का कोशिश करे। अगर राइटर कुछ डिप्रेशन में लिख रहा है तो वो डिप्रेशन का रीजन क्या था वो जानने की कोशिश करेगा हर एक रीडर। अगर सिर्फ एजुकेशनल पर्पस में रख दिया तो तभी क्या होगा, वो राइटर जाए भाड़ में, उसने उसमें लाइन क्या लिखा था, अरे अपने प्रेमिका के लिए क्या लिखा था, सिर्फ वही मतलब आप देखोगे, उससे ज्यादा आप सोच नहीं पाओगे। So according to Aristotle, it is equally important for each and every student to view poetry from educational standpoint as well as a part of philosophy. So that's all I wanted to discuss about Aristotle and Plato and what perspective they had about poetry. So I hope you have been able to understand each and everything that I have tried to explain. And lastly, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और जो भी टॉपिक आप चाहते हैं कि मेरे चैनल में डिस्कस हो which is related to literature, then just let me know in the comment section. And most important, please subscribe my channel. It gonna inspire me, it gonna motivate me to do better with my videos in my channel. So with the promise of coming back again, this is Rishikesh signing off from your own channel, 10 Minutes Literature.